ساتھیوں، آج میں آپ کو اردو قواعد کے اندر میں رموزی اوقاف کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ ساتھیوں، اردو قواعد کے اندر رموزی اوقاف کی کیا ضرورت محسوس ہوتی ہے، رموزی اوقاف کی کیا تعریف ہوگی۔ ساتھیوں، آج کی کلاس کے اندر میں آپ کو رموزی اوقاف کے بارے میں بتاؤں گا۔ ساتھیوں، رموزی اوقاف کسے کہیں گے؟ جس کو انگریزی کے اندر پنکچویشن کہا جاتا ہے۔ ساتھیوں، رموزی اوقاف کو انگریزی کے اندر پنکچویشن کہا جاتا ہے۔ آپ غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ العظیم ساری باتیں آپ کی سمجھ میں آئیں گی۔ رموزی اوقاف کو انگریزی کے اندر پنکچویشن کہا جاتا ہے۔ ساتھیوں، رموزی اوقاف کو انگریزی کے اندر پنکچویشن کہا جاتا ہے، جبکہ اسی رموزی اوقاف کو ہندی میں ویرام چہن کہتے ہیں۔ ساتھیوں، ہندی کے اندر رموزی اوقاف کو ویرام چہن کہا جاتا ہے۔ رموزی اوقاف کی تعریف کیا ہوگی؟ تب ساتھیوں آپ کا جواب ہونا چاہیے وہ خاص علامتیں جو عبارت میں ٹھہراؤ، روانی اور مفہوم کی صحیح کیفیت کو سمجھنے کے لیے لگائی جاتی ہے۔ ساتھیوں، اسے ہم رموزی اوقاف کہتے ہیں۔ ساتھیوں، آپ پھر سے سنیں گے، رموزی اوقاف کی تعریف وہ خاص علامتیں، وہ خاص نشانات جو عبارت میں ٹھہراؤ، روانی اور مفہوم کی صحیح کیفیت کو سمجھنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں یا مفہوم کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے ساتھیوں عبارت کے اندر لگائی جاتی ہے، اسے ہم کیا کہیں گے؟ اسے ہم رموزی اوقاف کہیں گے۔ ساتھیوں، رموزی اوقاف کی تعریف کیا ہوگی؟ ساتھیوں، تب آپ کا جواب ہونا چاہیے وہ خاص علامتیں جو عبارت میں ٹھہراؤ، روانی اور مفہوم کی صحیح کیفیت کو سمجھنے کے لیے لگائی جاتی ہے، اسے ہم رموزی اوقاف کہیں گے۔ ساتھیوں، اسی رموزی اوقاف کو ہندی کے اندر ویرام چہن کہا جاتا ہے، جبکہ اسی رموزی اوقاف کو انگریزی کے اندر پنکچویشن کہتے ہیں۔ ساتھیوں، لفظ رموز جو آپ سن رہے ہیں، ساتھیوں رمز کی جمع ہے، جس کے معنی نشانات کے ہوتے ہیں۔ رمز کی جمع رموز ہوتا ہے۔ ساتھیوں، رمز کی جمع رموز ہوتا ہے، جس کے معنی نشانات کے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، لفظ اوقاف جو آپ سن رہے ہیں، رموز اوقاف، لفظ اوقاف جو آپ سن رہے ہیں ساتھیوں، یہ وقف کی جمع ہے، جس کے معنی ٹھہرنا کے ہوتے ہیں۔ ساتھیوں، وقف کے معنی ٹھہرنا کے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو رموز اوقاف کے بارے میں بتاؤں، وہ خاص علامتیں جو عبارت میں ٹھہراؤ، روانی اور مفہوم کی صحیح کیفیت کو سمجھنے کے لیے لگائی جاتی ہے، اسے ہم رموز اوقاف کہیں گے۔ ساتھیوں، جیسے زبر، زیر، پیش، تشدید اور جزم وغیرہ، ساتھیوں یہ اعراب ہیں۔ ساتھیوں، میں آپ کو بتاؤں، اعراب کی مثال میں آپ کو سمجھاؤں، زبر، زیر، پیش، مد، جزم، تشدید وغیرہ، ساتھیوں یہ اعراب ہیں۔ ساتھیوں، ان کا استعمال الفاظ کے تلفظ کے لیے کیا جاتا ہے۔ ساتھیوں، ان کا استعمال الفاظ کے تلفظ کے لیے کیا جاتا ہے۔ ساتھیوں، اعراب کا استعمال الفاظ کے تلفظ کے لیے کیا جاتا ہے۔ ساتھیوں، اس لیے عبارت میں جگہ جگہ ٹھہرنا بھی پڑتا ہے۔ ساتھیوں، میں آپ کو بتاؤں، اردو قواعد کے اندر میں، ساتھیوں میں آپ کو بتاؤں، عبارت کے اندر میں ہمیں جگہ جگہ پر ٹھہرنا پڑتا ہے۔ ساتھیوں، میں آپ کو بتاؤں، عبارت کے اندر میں جگہ جگہ پر ٹھہرنا بھی پڑتا ہے۔ کہیں کہیں پر اتار چڑھاؤ کے لحاظ سے آواز دھیمی یا تیز کرنی پڑتی ہے۔ ساتھیوں، کہیں کہیں پر آواز کو دھیمی یا تیز بھی کرنی پڑتی ہے۔ ساتھیوں، اس لیے عبارت میں جگہ جگہ پر ٹھہرنا بھی پڑتا ہے۔ کہیں کہیں پر اتار چڑھاؤ کے لحاظ سے آواز دھیمی یا تیز کرنی پڑتی ہے۔ ساتھیوں، میں آپ کو رموزی اوقاف کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ رموزی اوقاف کی تعریف کیا ہوگی؟ وہ خاص علامتیں، ساتھیوں علامتیں کہتے ہیں نشانات کو۔ ساتھیوں، علامتیں کس کو کہیں گے؟ نشانات کو۔ وہ خاص علامتیں، وہ مخصوص علامتیں جو عبارت میں ٹھہراؤ، روانی اور مفہوم کی صحیح کیفیت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ رموز اوقاف کسے کہیں گے؟ وہ خاص علامتیں جو عبارت میں ٹھہراؤ، روانی اور مفہوم کی صحیح کیفیت کو سمجھنے کے لیے لگائی جاتی ہے، اسے ہم رموزی اوقاف کہیں گے۔ ساتھیوں، پھر سے آپ سنیں گے، رموزی اوقاف کسے کہیں گے؟ وہ خاص علامتیں جو عبارت میں ٹھہراؤ، روانی اور مفہوم کی صحیح کیفیت کو سمجھنے کے لیے لگائی جاتی ہے، اسے ہم رموزی اوقاف کہیں گے۔ ساتھیوں، جیسے میں آپ کو بتاؤں، زبر، زیر، پیش، تشدید اور جزم وغیرہ یہ اعراب ہے۔ ان کا استعمال
साथियों इनका इस्तेमाल अल्फाज के तलफ़ुज़ के लिए किया जाता है। साथियों मैं आपको बताऊं, इराब की मिसाल में ज़बर, ज़ेर, पेश, मद, जज़म, तशदीद वगैरह साथियों ये इराब की मिसाल है। इसलिए इबारत में जगह जगह पर साथियों ठहरना भी पड़ता है। कहीं कहीं पर उतार चढ़ाव के लिहाज से आवाज को धीमी या तेज करनी पड़ती है। साथियों कहीं कहीं पर उतार चढ़ाव के लिहाज से आवाज को धीमी या तेज करनी पड़ती है। साथियों मैं आज आपको रमूज़ औक़ाफ़ के बारे में मुख्तसर बता रहा हूँ। साथियों अभी मैं आपको रमूज़ औक़ाफ़ से रूबरू करा रहा हूँ और मैं उनके अलामात से रूबरू कराता हूँ। साथियों अभी मैं आपको रमूज़ औक़ाफ़ के बारे में बता रहा था। साथियों अब मैं आपको रमूज़ औक़ाफ़ के अलामात से रूबरू कराता हूँ। साथियों इस निशान को आप गौर से देखिए। ये छोटा सा जो निशान देख रहे हैं इसको उर्दू के अंदर में, उर्दू कवायद के अंदर में साथियों खत्मा कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में फुल स्टॉप कहते हैं। साथियों उर्दू के अंदर इसे हम खत्मा कहते हैं, जिसको अंग्रेजी के अंदर फुल स्टॉप कहा जाता है। इसी को हम हिंदी के अंदर पूर्ण विराम कहते हैं। साथियों कभी कभी सवालात के अंदर पूछे जाते हैं कि खत्मा को अंग्रेजी के अंदर क्या कहा जाएगा। साथियों खत्मा को अंग्रेजी के अंदर क्या कहा जाता है। साथियों खत्मा जिसको अंग्रेजी के अंदर फुल स्टॉप कहा जाता है और हिंदी में पूर्ण विराम कहते हैं। साथियों खत्मा को हम इंग्लिश के अंदर साथियों खत्मा को हम अंग्रेजी के अंदर फुल स्टॉप कहते हैं और इसको हिंदी में हम पूर्ण विराम कहते हैं। साथियों आप गौर से सुनेंगे, कभी कभी सवालात के अंदर ये पूछ लिए जाते हैं, उर्दू से अंग्रेजी पूछ लिए जाते हैं। साथियों कभी कभी सवालात के अंदर ये पूछे जाते हैं। साथियों आपसे अंग्रेजी दे दिया जाएगा, उर्दू पूछ लिया जाएगा, उर्दू दे दिया जाएगा, अंग्रेजी पूछ लिया जाता है। साथियों इसी तरीके से साथियों कभी कभी सवालात के अंदर आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि वक्फा को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, सख्ता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। साथियों कभी कभी अंग्रेजी दे दिया जाता है और इसका उर्दू आपसे पूछा जाएगा। इसीलिए साथियों एग्जामिनर जो होते हैं साथियों वो आपको फंसाने के लिए हर फंदा को अपनाते हैं। इसीलिए आपको चाहिए कि आप गौर से सुने और देखें। खत्मा साथियों ये छोटा सा निशान जो देख रहे हैं, ये अलामत जो देख रहे हैं साथियों, ये खत्मा है। इसको अंग्रेजी के अंदर फुल स्टॉप कहते हैं। इसी खत्मा को हम हिंदी में पूर्ण विराम कहते हैं। साथियों खत्मा को अंग्रेजी के अंदर फुल स्टॉप कहा जाता है और इसी को हम हिंदी में पूर्ण विराम कहते हैं। खत्मा को अंग्रेजी के अंदर फुल स्टॉप कहा जाता है, खत्मा को अंग्रेजी के अंदर फुल स्टॉप कहते हैं और इसको हिंदी में हम पूर्ण विराम कहते हैं। इसी तरीके से साथियों सख्ता ये छोटा सा निशान जो देख रहे हैं इसको हम सख्ता कहते हैं। साथियों इस छोटा सा निशान को हम सख्ता कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम कॉमा कहते हैं। साथियों अंग्रेजी के अंदर में सख्ता को कॉमा कहा जाता है। साथियों आप गौर से सुनेंगे, सख्ता को अंग्रेजी के अंदर कॉमा कहते हैं, जबकि इसी को हम हिंदी में अल्प विराम कहते हैं। साथियों सख्ता को अंग्रेजी के अंदर कॉमा कहा जाता है, जबकि इसी को हिंदी में अल्प विराम कहा जाता है। साथियों इसी तरीके से वक्फा ये छोटा सा निशान जो देख रहे हैं साथियों, ये वक्फा की अलामत है। वक्फा जिसको हम अंग्रेजी के अंदर सेमीकोलन कहते हैं, इसी को हम हिंदी में अर्धविराम कहते हैं। साथियों वक्फा को अंग्रेजी के अंदर सेमीकोलन कहा जाता है, वक्फा को अंग्रेजी के अंदर सेमीकोलन कहा जाता है, जिससे हम हिंदी में अर्धविराम कहते हैं। साथियों इसी तरीके से राबिता ये जो ऊपर नीचे नुक्ता देख रहे हैं, ऊपर नीचे बिंदु देख रहे हैं साथियों, इसे हम राबिता कहते हैं, जिसको अंग्रेजी के अंदर कॉलन कहा जाता है और इसे हम हिंदी में उपविराम कहते हैं। साथियों राबिता को अंग्रेजी में कॉलन कहते हैं। साथियों राबिता को अंग्रेजी के अंदर कॉलन कहा जाता है और इसे हम हिंदी में उपविराम कहते हैं। इसी तरीके से सवालिया साथियों प्रश्नवाचक चिन्ह जो होते हैं, सवालिया निशान जो होते हैं साथियों, इसे हम सवालिया कहते हैं, इसे हम क्वेश्चन कहते हैं अंग्रेजी में के अंदर। साथियों अंग्रेजी के अंदर सवालिया को क्वेश्चन कहा जाता है, जबकि इसे हम प्रश्नवाचक कहते हैं। साथियों सवालिया को अंग्रेजी के अंदर क्वेश्चन कहा जाता है, सवालिया को अंग्रेजी के अंदर क्वेश्चन कहा जाता है साथियों, जबकि हिंदी के अंदर इसे हम प्रश्नवाचक कहते हैं। साथियों इसी तरीके से वाविन जिसको हम इन्वर्टेड कोमा कहते हैं। साथियों इन्वर्टेड कोमा के दो शक्ल है साथियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं दो निशानात इधर से है और दो निशानात इधर से है, या नहीं तो एक निशान इधर से होगा ऊपर से साथियों, एक निशान दाएं से और एक निशान बाएं से होता है साथियों। वाविन जिसको हम इन्वर्टेड कोमा कहेंगे, वाविन को
अंग्रेजी के अंदर इन्वर्टेड कोमा कहा जाता है साथियों। वावेन जिसको अंग्रेजी के अंदर इन्वर्टेड कोमा कहते हैं, हिंदी में उद्धरण चिन्ह कहा जाता है साथियों। वावेन जिसको अंग्रेजी के अंदर इन्वर्टेड कोमा कहते हैं साथियों। इस निशान को गौर से देखिए दोनों को साथियों। इस क्वेश्चन के अंदर में जो ये निशानात हैं इनको देखिए। इसी तरीके से इस क्वेश्चन के अंदर देखिए साथियों, वावेन जिसको अंग्रेजी के अंदर इन्वर्टेड कोमा कहा जाता है, इसे हम उद्धरण चिन्ह कहते हैं साथियों हिंदी के अंदर। इसे हम क्या कहेंगे? उद्धरण चिन्ह कहते हैं हिंदी के अंदर साथियों। इस दोनों क्वेश्चन को देखिए साथियों, ये वावेन की मिसाल है। इसी तरीके से साथियों फिजाइया साथियों, एक्सक्लामेशन कहते हैं फिजाइया को साथियों। अंग्रेजी के अंदर में फिजाइया को एक्सक्लामेशन कहते हैं, एक्सक्लामेशन कहते हैं फिजाइया को साथियों। आप गौर से देखेंगे फिजाइया को अंग्रेजी के अंदर एक्सक्लामेशन कहते हैं साथियों। विस्मयादि बोधक कहा जाता है अंग्रेजी के अंदर, हिंदी के अंदर फिजाया जिसको अंग्रेजी के अंदर एक्सक्लामेशन कहा जाता है साथियों। फिजाया जिसको अंग्रेजी के अंदर एक्सक्लामेशन कहा जाता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह कहा जाता है साथियों हिंदी के अंदर। विस्मयादि बोधक साथियों, एक्सक्लामेशन को हिंदी में विस्मयादि बोधक कहा जाता है, इसी को हम उर्दू में फिजाइया कहते हैं साथियों। फिजाइया को हिंदी के अंदर में विस्मयादि बोधक कहा जाता है, जबकि इसी फिजाइया को इंग्लिश में एक्सक्लामेशन कहते हैं। फिजाइया को अंग्रेजी के अंदर में एक्सक्लामेशन कहा जाता है, जबकि फिजाइया को हिंदी में विस्मयादि बोधक कहा जाता है साथियों। ये छोटी सी जो अलामत देख रहे हैं एक के जैसा लिखा हुआ, उसके नीचे में एक नुक्ता है साथियों, इसे हम फिजाइया कहते हैं साथियों। कौसीन ये जो देख रहे हैं साथियों ब्रैकेट साथियों, इसे हम कौसीन कहते हैं साथियों। कौसीन को अंग्रेजी के अंदर ब्रैकेट कहा जाता है, जबकि हिंदी में इसे कोष्ठक कहते हैं साथियों। कौसीन को अंग्रेजी के अंदर में ब्रैकेट कहते हैं साथियों। कौसीन को अंग्रेजी के अंदर ब्रैकेट कहते हैं, जबकि इसे हम हिंदी में कोष्ठक कहते हैं। कौसीन की 3 किस्में होती हैं साथियों, कौसीन की 3 किस्में होती हैं। कौसीन को अंग्रेजी के अंदर ब्रैकेट्स कहते हैं, कौसीन को अंग्रेजी के अंदर ब्रैकेट्स कहते हैं, और हिंदी में से साथियों कोष्ठ कहते हैं या कोष्ठक कहते हैं साथियों। उम्मीद करता हूं खुदा की जात से कि आप रमूज़ औकाफ के अलामात को बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। औकाफ के जो अलामात है उनसे मैंने आपको रूबरू कराया। इंशाअल्लाह अज़ीम आप रमूज़ औकाफ के अलामात को बेहतर तरीके से साथियों देखे होंगे, समझे होंगे साथियों। आज की क्लास के अंदर में मैंने आपको रमूज़ औकाफ के बारे में मुख्तसर बताया, उनके अलामात से रूबरू कराया साथियों। अब मैं खुदा की जात से उम्मीद यही करता हूँ कि आप रमूज़ औकाफ के बारे में, उनके अलामात को बेहतर तरीके से साथियों पहचान लिए होंगे साथियों। रमूज़ औकाफ के बारे में बेहतर तरीके से जान लिए होंगे साथियों। मैं आपसे मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन उर्दू 99 पर पहली मर्तबा जुड़ रहे हैं साथियों, ये पहली मर्तबा इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल ऑनलाइन उर्दू 99 को साथियों लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलेंगे। तमाम साथियों से मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा, आप हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन उर्दू 99 पर पहली मर्तबा जुड़ रहे हैं साथियों, पहली मर्तबा इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलेंगे, दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे साथियों, बेल आइकन को दबाना ना भूलेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करना हरगिज ना भूलेंगे। मैं आप तमाम साथियों से कहना चाहूँगा, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, जेटेट की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अहम है साथियों। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अहम है साथियों, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो मवाद आप देख रहे हैं सारे मवाद एनसीईआरटी पर मुश्तमिल होता है साथियों। मैं आपके लिए जो भी मवाद उठा कर लाता हूं साथियों, ये सारे मवाद एनसीईआरटी से उठा कर लाता हूं साथियों। मैं अब इजाज़त चाहता हूं आपसे साथियों। आज की क्लास में मैंने आपको रमूज़ औकाफ के बारे में मुख्तसर बताया, उनके अलामात से रूबरू कराया साथियों। अब मैं आपको आगे की क्लास में साथियों अगले वीडियो में आपको रमूज़ औकाफ के बारे में तफसील से बताऊँगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।